So we'll begin our day 12. Welcome everyone, guys. So today we could not continue yesterday because of my learn everything about this, multiple threads, and finally हम करेंगे reports. Mostly मैं बात करूँगा extent reports की. So these are the topics that we'll cover, and of course within all this we'll learn a lot of तो मैंने कल आप लोगों को क्या बताया था कि TestNG is an execution engine. So since TestNG is an execution engine, we do not need the main method because technically main method in Java acts as the execution engine. But TestNG in itself is an execution engine. So we will not use this particular main method. We'll just make a class without this main method and I'll finish it. So this is a class which has been created, and here we will learn about all different types of annotations. Now what are the different types of annotations? बहुत सिंपल है, आप उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे जाइए, राइट क्लिक, गो टू टेस्टएनजी एंड यू क्लिक ऑन क्रिएट टेस्टएनजी क्लास. तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दिखाई देंगी. सो यू कैन क्रिएट हियर ऑल्सो, बट मैं नहीं बनाना चाहता, मैं बस दिखाना चाहता हूँ. सो बिफोर मेथड, आफ्टर मेथड, डेटा प्रोवाइडर, before class, after class, before test, after test, before suite, after suite. These are the different test annotations, and test is also an annotation which is not which is something which is nothing but the execution core. Okay, so now we will learn all these things. मैं एक एक करके बता देता हूँ, and I'll write in preceding preference. Preceding preference नहीं, मतलब execution precedence के ऊपर काम करते हैं ये. So these various annotations, ये पहले always remember you start followed by a method. मैं बताऊंगा मेथड क्या होता है. अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेथड का नाम, और यहाँ this is before suite annotation.
Hello, sir. I'm not getting your voice. Anyone else not getting my voice? Guys, why don't you respond? Very clear to me. Everything is Poonam, you have certain issues in your internet. Okay. Poonam, we were also not able to ask you to unmute because आपका net आपके में issue है. Everyone can hear me. Nikki, can you hear me? Mrinalini, can you hear me? Guys, Yes, sir. okay. See, Poonam, everyone can hear me. Yes, sir. हाँ. Okay. So this we'll learn everything before suite and then comes before test. Okay. Similarly, I'll just copy this and I'll write here before test. And this is I'll write here annotation और फिर इसको भी मैं import कर लूँगा using org.testng.annotation. किसी और को मत annotation package उठा मत लेना. Copy. I'll again paste instead of before test, I'll write before class, and this I'll write the name of the method as, and here I'll write before class annotation, and then I'll import this one too. JUnit मत करना, testng.annotation. ठीक है. So ये भी हो गया. Now I'll copy again. Now this is before method. Method. And here ठीक है. इसको भी मैंने कर दिया. Before method. ठीक है. Before class. This is after suite. Public void test case 1.
This is बिफोर स्वीट, और ये बहुत पूछते ही पूछते हैं, अगर टेस्ट एनजी में पूछने लग गया बंदा। ये एक्सपीरियंस को ही पूछते हैं, और पहले बिफोर स्वीट एग्जीक्यूट होगा, फिर बिफोर टेस्ट होगा, फिर बिफोर क्लास होगा, फिर बिफोर मेथड होगा, फिर एट द रेट टेस्ट होगा, आफ्टर मेथड होगा, आफ्टर क्लास होगा, आफ्टर टेस्ट होगा और आफ्टर स्वीट होगा। ये एग्जीक्यूशन है। आप ये सीक्वेंस को याद रख लीजिए, इसका कोई और उपाय नहीं है। ये एग्जीक्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता ही जाता है। सो प्लीज रिमेंबर दिस। मैंने एग्जैक्टली उसी वे में आपको बताया था, और आउटपुट में भी आपको समझ में आ गया कि एक्चुअली एग्जीक्यूशन भी वैसे ही हो रहा है। ठीक है। So this is one topic about TestNG. Now there is another topic about TestNG. उसका है बिफोर मेथड, टेस्ट और आफ्टर मेथड की स्पेशलिटी क्या है। ओके, ये कॉम्बिनेशन है, दिस इज ए 3 टाइप कॉम्बो। उसका स्पेशलिटी क्या है? लेट्स से फॉर एग्जांपल आई विल राइट, नहीं चलो मैंने लिख दिया, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ दिस टेस्ट केस। ठीक है, अभी मैंने इसको कंट्रोल शिफ्ट हो कर दिया। अभी मैं यहाँ पर एक टेस्ट केस बनाऊंगा, पब्लिक वॉइड, दिस इज लॉजिक 1, सब केस लिखा सिसो, दिस इज लॉजिक 1 टेस्ट केस, कंट्रोल शिफ्ट हो। ठीक है, मैंने और एक टेस्ट केस बनाया, क्योंकि मल्टीपल टेस्ट केसेस भी हो सकते हैं। मैंने इसको लॉजिक 2 बना दिया, सॉरी, राइट नाउ मैंने लॉजिक 2 बना दिया। अभी मैं इसको कॉपी कर रहा हूं बिफोर टेस्ट को, और यहाँ पे मैंने आफ्टर टेस्ट बना दिया, क्योंकि बिफोर किया है तो एंड तो करना पड़ेगा। आई एम यूजिंग आफ्टर टेस्ट, और मैं यहाँ पे लिख देता हूं एंड, दिस इज एंड ऑफ दिस टेस्ट केस, कंट्रोल एस कंट्रोल शिफ्ट ओ। ठीक है, मैंने कर दिया। नाउ यू विल सी समथिंग। मैं अभी इसको राइट क्लिक करके एग्जीक्यूट करता हूँ, एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि 2 टेस्ट एनजी एनोटेशन, खाली टेस्ट एनोटेशंस हैं। पास भी हो गया। विल सी दी आउटपुट, कंसोल में आउटपुट चेक कीजिए। दिस इज लॉजिक 1 टेस्ट केस, दिस इज लॉजिक 2 टेस्ट केस, एंड दिस इज द एंड ऑफ द टेस्ट केस, एंड दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द टेस्ट केस। सो ये टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट हुआ है। पहले ये भाई साहब हुए, फिर लॉजिक 1 लॉजिक 2 ऐसे करके प्रिंट हुआ। ठीक है, नाउ द थिंग इज, बिफोर मेथड और आफ्टर मेथड में क्या डिफरेंस है वो बता देता हूं। मान लो मैं बिफोर टेस्ट ना यूज करके
So, am I audible? Yes. Okay, so this is about before test and after test. 1 second, guys. Let me shut the door. Okay, this is about before test and after test. It's not about before test and after test. Our topic is about before method and after method, and this speciality, the special relationship before method and after method shares with these @test annotations. So what I'm going to do is I'm going to write here before method, and here I will write after method, and accordingly I'll save my class. Now if I execute this, you will see there is a small change. The difference in output is little, you know, it is little uncanny in nature. यहाँ पे क्या होता है, whenever there is before method and after method, always the sequence will follow like this. The sequence of the execution will always be like this: @before method, @before method will be followed by @test, and it will be followed by @after method. अगर इनके दौरान एक टेस्ट केस है तो ऐसे होगा, अगर मल्टीपल टेस्ट केसेस हैं तो भी बिफोर मेथड बिफोर मेथड @test1, फिर आफ्टर मेथड, और फिर दूसरा भी ऐसे ही फॉलो करेगा. अगर दो टेस्ट केस हैं तो ये test2 को होगा. सो टेक्निकली स्पीकिंग, बिफोर मेथड टेस्ट केसेस हों तो बिफोर मेथड टेस्ट1 आफ्टर मेथड, बिफोर मेथड टेस्ट2 आफ्टर मेथड, तो उस कॉम्बिनेशन में ये एग्जीक्यूट होते हैं. यहाँ पर देखिए, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ टेस्ट केस, बिफोर मेथड का वो है, दिस इज लॉजिकल टेस्ट केस टेस्ट1 का है, और ये आफ्टर मेथड. देखो ये 3 कॉम्बो में हुआ. फिर दूसरा देखिए, ये भी 3 कॉम्बो में है. ठीक है, तो ये स्पेशलिटी है बिफोर मेथड और आफ्टर मेथड, और इनकी ये स्पेशलिटी है. तो आप इस चीज को ध्यान रखिए कि जब भी हम बिफोर मेथड यूज करेंगे, और जनरली हम लोग ऑटोमेशन में मैक्सिमम टाइम बिफोर मेथड को ही एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि हमें बिफोर मेथड में बहुत सारी चीजें रिक्वायर्ड हैं. एक टेस्ट केस को बार बार रन करना है, और सारे तो बिफोर मेथड में हम जो लॉजिक करेंगे, जैसे मान लो आपको वेब ड्राइवर कोड को बुलाना है, तो आप अलग अलग क्लास थोड़ी बनाओगे, आप बिफोर मेथड को बार बार कॉल करोगे. तो बस बिफोर मेथड यूज कर लेना, ये काम आपका हो जाएगा. जब हम प्रैक्टिकली ऑटोमेशन में इसको इम्प्लाई करेंगे तब आपको अच्छे से और समझ में आएगा. बट दिस इज द लॉजिक बिहाइंड इट. आई होप आई एम क्लियर. एनी डाउट्स सो फार in TestNG annotations, this the special ability of before method working as a try combo with before method and a test annotation and after method? Any doubts so far? No, sir. Okay, cool. Now the next part is, I'll tell you some features which are important features of annotations, जो कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा बिकॉज इट विल बी यूजफुल. ठीक है, तो मैं काम करूंगा, ये इसको कॉपी मार लेता हूँ. नहीं छोड़ो, इसी को कॉपी मार लेता हूँ. मैंने कॉपी मार के यहाँ पे पेस्ट कर दिया. ठीक है, अब ये तो लॉजिक 1 लॉजिक 2 है, तो समझ में आता है कि ये पहले एग्जीक्यूट होगा क्योंकि 1 है 2 है. मान लो यहाँ पे कुछ अंधाधुन नाम है, जैसे यहाँ पर है वैलिडेट लॉगिन फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, एंड हियर लॉग आउट. ओके, नाउ इफ आई एग्जीक्यूट दिस, कायदे से क्या होना चाहिए, वैलिडेट लॉगिन पहले लॉगिन करना चाहिए. क्यों? क्योंकि लॉगिन करेगा तभी ना लॉग आउट करेगा.
बट आप यहाँ पे आउटपुट देखो, दिस इज लॉजिक 2 ऑफ द टेस्ट केस। एक सेकेंड, अच्छा मैं इन सबको बंद करता हूँ, एक सेकेंड, ये ठीक से एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। मैं दोबारा इसको रन करता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ, दोबारा रन करते हैं। रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट। हाँ अभी रन हुआ, वो पहले किसी और का रन कर रहा था। सी ओके, दिस इज लॉजिक 1, दिस इज लॉजिक 2। कायदे से लॉजिक 1 पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए ना, पहले एग्जीक्यूट कौन हो रहा है? लॉजिक 2 एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब लॉग आउट पहले हो रहा है, लॉग इन बाद में हो रहा है। दिस इज लॉजिक 1, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ दिस इज लॉग आउट फंक्शनैलिटी, ठीक है, एंड दिस इज login functionality. So if I execute this again, technically logout should come after login, but testng is executing. Okay, now this one is executing absolutely fine, but in the previous iteration it was testing something else. So technically testng does not have control on which test case it will run first. वो अपने हिसाब से मन धड़न कुछ भी execute करता है. So let's say for example I'll put another test case @test public void home page. Okay, I'll type testing home page for example. तो इसका कोई सर पैर नहीं है, वो कुछ भी एग्जीक्यूट करेगा। इट विल नॉट सी कि ओके दिस टेस्ट केस शुड बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, ये सेकंड आएगा, ये थर्ड आएगा, ये फोर्थ आएगा, ये फिफ्थ आएगा, वो सबको एग्जीक्यूट कर देगा और कोई सीरियल वाइज नहीं करेगा। देखो अभी होम, अभी इसने सही किया, दिस इज टेस्टिंग होम पेज, देखो गलत कर दिया। पहले इसने होम पेज को टेस्ट किया, फिर लॉगिन फंक्शनैलिटी को टेस्ट कर रहा है, फिर फाइनली जाके लॉग आउट को कर रहा है। तो सीक्वेंस इसका बराबर नहीं है, वो अपने हिसाब, अभी अगली बार रन करूंगा ना आउटपुट कुछ और ही आएगा। तो आउटपुट के ऊपर एग्जीक्यूशन का अभी टेस्टएनजी को डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, वो अपने हिसाब से जो उसको जेवीएम बोलता है वो करता है। तो अभी इसको कंट्रोल कैसे करें? वेरी सिंपल, आप चाहते हो ये वाला टेस्ट केस आपका पहले एग्जीक्यूट हो, सिंपल यहाँ पे आप लिख दो प्रायोरिटी इक्वल टू 1। अब यहाँ पे आप लॉग आउट आपका लास्ट में हो, 3 टेस्ट केस में प्रायोरिटी इक्वल टू 3, और ये आप चाहते हो सेकंड में एग्जीक्यूट हो, प्रायोरिटी इक्वल टू 2। देखो अभी आप इसको रन करोगे, चाहे 10 बार भी रन क्यों ना करो, ये हमेशा इसी प्रायोरिटाइज्ड जो भी आपने एनोटेशन दिया है, जो भी आपने एनोटेशन के अंदर जो इनपुट पैरामीटर पास किए हैं, उसी बेसिस पे ही एग्जीक्यूट होगा। हम आउटपुट अभी चेक करते हैं। देखिए ये फिर से गड़बड़ दिखा रहा है, हालांकि नहीं दिखाना चाहिए। 1 सेकेंड, प्रायोरिटी इक्वल टू 1 दिया, प्रायोरिटी इक्वल टू 3 दिया, प्रायोरिटी इक्वल टू 2 दिया। सो पहले एक काम करता हूँ मैं, बिफोर मेथड आफ्टर मेथड को हटा देता हूँ फॉर द टाइम बिंग। वो बहुत ज़्यादा डेटा होता है ना, तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है आदमी। ठीक है, तो मैं अभी इन दोनों को हटा रहा हूँ, खाली सिंपल टेस्ट केस को रन कर रहा हूँ। हमें ये चेक करना है कि दिस इज लॉग आउट फंक्शनैलिटी टेस्ट पहले प्रिंट होगा, टेस्टिंग होम पेज बाद में। ओके ओके Yes. ओके, सो नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज, मैंने वो बिफोर मेथड आफ्टर मेथड हटा दिया, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। मैं सिंपल ये प्रायोरिटी सेट किया, अब इनको रन किया। तो देखिए ये बराबर अभी रन हुआ है, देखो यहाँ पर भी ये बराबर रन नहीं हुआ। दिस इज लॉग आउट फंक्शनैलिटी टेस्ट पहले आ रहा है, टेस्टिंग होम पेज आ रहा है,
तो दिस इज लॉगिन फंक्शनैलिटी आ रहा है। सो दिस इज समथिंग विच इज अलार्मिंग, ये पहले कभी नहीं देखा मैंने, तो ये यहाँ पर इशू है। सो समहाउ ये प्रायोरिटी को भी इग्नोर कर रहा है। इट इज ए स्ट्रेंज फिनोमिनन, ऐसा होना नहीं चाहिए। टेक्निकली व्हेन यू सेट सर्टेन प्रायोरिटी इट शुड ऑलवेज adhere टू दैट प्रायोरिटी। पता नहीं प्रायोरिटी ले क्यों नहीं रहा है, एम आई डूइंग समथिंग रॉन्ग? वन सेकेंड। देखो ये पहले लॉग आउट फंक्शनैलिटी को रन कर रहा है, ये टेस्टिंग होम पेज को कर रहा है। दिस इज लॉग इन फंक्शनैलिटी विच इज लिटिल अलार्मिंग। ऐसे होना नहीं चाहिए क्योंकि मैंने इसको प्रायोरिटी सेट किया है। सो वाई इट इज वर्किंग लाइक दिस आई हैव नो आइडिया। I think this is some kind of thing which I should report. But the problem is it is taking this alphabet first. Validate V. Okay. So V A के बाद V बहुत पीछे आता है, सबसे पहले H आता है, तो somehow it is taking no logout functionality first, which should not be the case. A B C D E F G H I J K L. So somehow this thing is totally gone for a toss. ये काम नहीं कर रहा। I don't know why it should not be like this. But it is misbehaving, and why it is misbehaving I don't know, but technically this should work. Poonam, can you check your system? Is it misbehaving? Nikki, can you check yours? Yes, sir. Wait, sir. Just try this in your system, exactly the same thing. मैं आपको कॉपी पेस्ट करके ये छोटा सा कोड दे देता हूँ in the chat section. Just copy the same code. It should not be the case, but why it is working I don't know. Why it is misbehaving like this I have no idea. होना नहीं चाहिए। This should be priority 2, this should be priority 1 and this should be priority 3। और मैं ऊपर नीचे करके लिखूं उसको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये अगर ऐसा है, देखो ये लॉग आउट फंक्शनैलिटी पहले रन कर रहा है, लॉगिन को बाद में कर रहा है, विच इज़ नॉट राइट, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉट राइट। प्रायोरिटी हम सेट कर रहे हैं तो हमें बराबर होना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर मैं इसको वी हटा दूं और ए लॉगिन कर दूं तो ये पहले करेगा, और बी होम पेज कर दूं तो ये पहले करेगा, और सी लॉग आउट कर दूं तो अब अगर मैं इसको अभी रन करता हूं, अभी इसने क्या किया, सी लॉग आउट को पास किया और एक को ही रन किया, तीनों को रन ही नहीं किया, उसने तीनों को छोड़ दिया। पता नहीं टेस्टन जी पागल हो गया है, कुछ भी हो रहा है। ये टेस्टन जी खराब हो रखा है, ये कुछ भी उल्टा सीधा हरकत कर रहा है। गाइज व्हाट इज कमिंग विथ यू? क्योंकि हो सकता है मैंने pom.xml में टेस्टन जी का वर्जन कुछ और ही डाला हो। लेट्स सी, दिस इज समथिंग विच शुड नॉट बी हैपनिंग एक्चुअली, बट हो क्यों रहा है आई डोंट नो। ऐसे जनरली होता नहीं है, तो हम लोग प्रायोरिटी इसीलिए सेट करते हैं कि हमको बराबर एग्जीक्यूशन मिले। टेस्टन जी का मैंने इधर डाला भी नहीं क्या, घर के हैमक्रिस्ट को कुकुम्बर टेस्टन जी से, कुकुम्बर जावा है, कुकुम्बर कोर जावा क्लाइंट। No, this should not be the case. It should have testng। पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसे। JUnit है। Okay, let me pick up testng Maven dependency। मैं उठाता हूँ 7.4.0 कॉपी, और ये मेवन डिपेंडेंसी में मैं डाल देता हूँ। ये सब क्या है मैं बाद में बताऊंगा, आप लोगों को थोड़ा बहुत तो पता होगा ही, बट ये होना नहीं चाहिए। लेकिन ये क्यों हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा मुझे, तो मैं भी अभी इसको डिपेंडेंसी को डाल देता हूँ। मैं अभी इसको बिल्ड वर्कस्पेस कर रहा हूँ तो शायद ये चल जाए, क्योंकि ये लाइब्रेरी से ठीक से काम नहीं कर रहा।
पूनम आपको भी वही दिक्कत आ रही है जो मुझे आ रही है? सर मेरे एंड पर वर्किंग फाइन. It is working fine for you after giving priority, right? Yes. राइट सर. So there is some problem in my system. So please don't go by the output of my system. I'll restart my system and check my Eclipse. So technically जब आप priority set करोगे, so whatever यहाँ पर जो naming convention ABCD जो alphabetical order में execute होता था वो नहीं होगा. So whatever priority you will give, it will happen as per the same way. अभी मैं ये सब चीज़ें हटा देता हूँ क्योंकि मेरे सिस्टम में कुछ लोचा हो रहा है. I don't know why it is acting funny in my system, but आपको नहीं होना चाहिए. You will get it absolutely fine. Now there is one more thing which you also need to do. There is something known as enabled equal to true. Okay, so now if you do not write anything, that means by default it is enabled equal to false. By default it is enabled equal to true. अगर आप यहाँ पे enabled equal to true नहीं भी लिखोगे ना तो by default it is enabled equal to true. ठीक है, और यहाँ पे अगर आप इसको डिसेबल करना चाहते हो तो यू विल राइट इनेबल्ड इक्वल टू ट्रू. लेकिन कोई गलती से भी डिसेबल्ड इक्वल टू ट्रू मत कर देना, ये नहीं एग्जिस्ट करता, एरर देगा. ऐसा कुछ होता ही नहीं, डिसेबल्ड इक्वल टू कुछ होता ही नहीं है. इट इज इनेबल्ड इक्वल टू ट्रू और फॉल्स. अगर आप एक पर्टिकुलर टेस्ट केस को डिसेबल करना चाहते हो तो यू विल राइट इनेबल्ड इक्वल टू फॉल्स. और यहाँ पे लिखोगे, मान लो इसको आप इनेबल करना चाहते हो तो यू विल राइट इनेबल्ड इक्वल टू ट्रू. ठीक है, आप इस बेसिस पे आपका लिख सकते हो. नाउ अभी मैं इसको रन करूंगा, मेरे आउटपुट पे ध्यान मत दो. तो टेक्निकली दो टेस्ट केस एग्जीक्यूट होने चाहिए. मेरा तो आउटपुट कुछ भी आ रहा है, मेरा सिस्टम में कुछ लोचा है. देखो दो टेस्ट केस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, लॉग इन और लॉग आउट. होम पेज एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं है. क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे डिसेबल कर दिया था. और आप लोग इसको ऐसे ही जो पर्टिकुलर टेस्ट केस आपको नहीं करना है उसको इनेबल्ड इक्वल टू फॉल्स कर दो. ठीक है, तो वो काम करने लगेगा. और एक चीज मान लो ये भी इनेबल्ड इक्वल टू ट्रू है, लेकिन एक कंडीशन ये है कि जब तक लॉगिन फंक्शनैलिटी पास नहीं होगा होम पेज को टेस्ट करने का मतलब ही नहीं. अगर आपका टेस्ट केस लॉगिन में ही फेल हो रहा है तो भैया आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है. तो समहाउ दिस पर्टिकुलर होम पेज मेथड इज डिपेंडेंट ऑन लॉगिन. जब तक लॉगिन ठीक नहीं चलेगा तब तक होम पेज पे आने की जरूरत नहीं है. आगे मेहनत करने का क्यों? लॉगिन ही केस फेल हो रहा है तो बड़ा वाला डिफेक्ट रेस कर दो और वेट करो. ठीक है, तो समहाउ यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, इसको डिपेंड्स ऑन मेथड्स इक्वल टू और इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर लॉगिन. ये मेथड के ऊपर डिपेंडेंट है. ठीक है, अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो अगर ये पास होगा तभी ये एग्जीक्यूट होगा. अब यहाँ पे तीनों एग्जीक्यूट हो जाएंगे क्योंकि ये वाला पास हो रहा है. ठीक है, होम पेज भी पास हो गया. पता नहीं मेरा होम पेज पहले क्यों हो रहा है. ये भी हो गया, ये भी हो गया. ठीक है, मेरा सीक्वेंस थोड़ा गड़बड़ हो रहा है बट हाँ हो रहा है. अभी मैं काम करता हूँ, मैं जानबूझ के ना ये वाले टेस्ट को फेल कर देता हूँ. तो मैं क्या करूंगा, असर्ट डॉट फेल कर दूंगा. मैं एक असर्शन करके इस पर्टिकुलर टेस्ट केस को जबरदस्ती फेल कर रहा हूँ. मैंने असर्ट लगा के इस पर्टिकुलर टेस्ट केस को फेल कर दिया. अब भैया लॉगिन टेस्ट केस तो फेल हो रहा है. अभी ये जो होम पेज टेस्ट है ये साला लॉगिन पे डिपेंडेंट है. तो अब इसका क्या होगा? अब ये डिपेंडेंट है तो भैया फिर ये तो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन फिर इसका क्या होगा? तो हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं. देखिए टोटल तीनों रन हुए, एक फेल हो गया और एक को स्किप कर दिया और एक पास हुआ. पास कौन सा हुआ? लॉग आउट टेस्ट पास हुआ है क्योंकि वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं था, वो पास हो गया. लॉगिन टेस्ट को हमने जानबूझ के फेल किया है. देखो मैंने इसको फेल कर दिया जानबूझ के. आई एम फेलिंग इट डेलिबरेटली. तो भैया ये जो होम पेज है ये तो लॉगिन पे डिपेंडेंट था. तो भला ये वाला फेल हो गया तो ये टेस्ट एनजी सोचा इसको एग्जीक्यूट करने की जरूरत ही नहीं है.
तो उसने इसको स्किप कर दिया। सिंपल। तो बात वहीं पहुंच जाती है, अगर आपका जो टेस्ट केस, एक टेस्ट केस फेल हो रहा है और दूसरा कोई टेस्ट केस उस पर डिपेंड कर रहा है ना, तो वो वाला स्किप हो जाएगा। ये इंटरव्यू क्वेश्चन है। इफ what will be happen to that test case if it is dependent on a test case which is failing, obviously it will get skipped. Now मैं इसको यहाँ पर ये भी कर सकता हूँ। मल्टीपल डिपेंडेंसी कैसे लगाएं? डिपेंड्स ऑन मेथड्स इक्वल टू, पहला मेथड कौन सा है? लॉग इन कॉमा होम पेज। देखो, तो अभी यहाँ पे अजीब सी घटना हो गई। ये वाला टेस्ट केस फेल हो गया, ये वाला टेस्ट केस उसके ऊपर डिपेंडेंट है, और ये वाला टेस्ट केस इन दोनों पे डिपेंडेंट है, क्योंकि मैंने मल्टीपल डिपेंडेंसी डाल दी, लॉगिन भी और होम पेज भी। ऐसे भी होता है, क्यों? ऑब्वियस ही बात है, लॉग आउट तो इस पे ये पास है, ये पास है, तभी इसको टेस्ट करेंगे, नहीं तो इसको टेस्ट क्यों करेंगे? तो अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो आप देखना रन तीनों होंगे, लेकिन स्किप हो जाएंगे दो, एक हो जाएगा फेल। पास कुछ नहीं होगा, पास आएगा 0, पास आया 0, फेलियर आया 1, स्किप हो गया 2। फेलियर 1 कौन सा? ये हमने फेल किया है तो ये फेल हुआ, और ये दोनों स्किप कर गए, तो पास कुछ हुआ ही नहीं। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ, दिस इज द ब्यूटी ऑफ these फीचर्स इन एनोटेशन। बहुत सारा फीचर्स अब इस पे। चलो मैं आपको और एक फीचर के बारे में बताता हूँ जो आपको बहुत कम लोग जानते होंगे। ठीक है भाई, ये फेल हो गया, कोई बात नहीं, मैं इस पे, ये सेकंड टेस्ट केस इस पे डिपेंडेंट भी है, चलो कोई बात नहीं, तब भी मैं चाहता हूँ कि ये स्किप ना करे, ये एग्जीक्यूट करे। तो वेरी गुड, आप ये लिख दो, ऑलवेज रन इक्वल टू ट्रू। अभी इसको रन करते हैं। इसका आउटपुट हम चेक करेंगे। पास हुआ है, आप देखो, होम पेज पास हुआ है। लॉगिन पेज को हमने जानबूझ के फेल किया, होम पेज पास हुआ है। ठीक है, लॉग आउट स्किप हो गया। क्यों स्किप हुआ लॉग आउट? अब आप बोलोगे सर लॉग आउट को भी पास या फेल होना चाहिए था। नहीं, अभी भी लॉग आउट इस पे डिपेंडेंट है। अगर ये नहीं होता, खाली ये होता, तो लॉग आउट भी पास हो जाता। तो मैं इसको भी अगर ऐसे कर दूं, ऑलवेज रन इक्वल टू ट्रू, तो अब ये भी पास आउट हो जाएगा। अभी खाली लॉगिन टेस्ट 1 फेल होगा, कोई स्किप नहीं होंगे, और 2 पास हो जाएंगे। कोई भी स्किप नहीं हुआ, एक फेल हुआ, जो लॉगिन जो जानबूझ के हमने फेल किया। अब होम पेज और लॉग आउट दोनों पास है, होम पेज पास, लॉग आउट पास, और ये भाई साहब फेल हो गए, कोई स्किप नहीं हुआ। तो दिस इज अनदर ब्यूटी ऑफ दिस फीचर ऑफ टेस्ट एंड एनोटेशन। यहां तक कोई डाउट है? प्लीज आस्क मी राइट अवे। सर ये जो लास्ट वाला मेथड है, आप इसमें ऑलवेज रन हटा दो और लॉगिन भी हटा दो, फिर क्या होएगा? एक्चुअली मेरा सिस्टम थोड़ा भी देखो है। देखो, एक एक स्टेप। ऑलवेज रन इक्वल टू ट्रू हटा देंगे, ठीक है, आपने ये हटवा दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे सिनारियो देखो, तो ये भाई साहब अभी भी लॉगिन पे डिपेंडेंट है, लॉगिन फेल हो लॉगिन रहा भी है। हटा दो। अच्छा, तो अभी मैं लॉगिन भी हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये पास कर जाएगा, क्यों? क्योंकि होम पेज पास हो रहा है ना। ये सिर्फ अभी होम पेज पे डिपेंडेंट है, लॉगिन पे डिपेंडेंट है ही नहीं। इसके साथ लॉगिन का रिश्ता खत्म हो गया। खत्म हो गया। हाँ, ठीक है। तो अभी ये पास हो जाएगा। तो अभी 2 पास 1 फेल आएगा, कोई स्किप नहीं आएगा। देखो, 2 पास 1 फेल, कोई स्किप नहीं है। ठीक, ओके, थैंक यू सर। ओके, एनीवन एल्स हैज एनी डाउट अभी तक? बट आप लोग को इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि ये इंटरव्यू में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपके ऊपर है, आप इसको कैसे प्रैक्टिस करो, मैंने तो बता दिया, ठीक है। ऐसे हो गया। चलो मैं काम करता हूँ, मैं और एक टेस्ट केस बनाता हूँ आपको, और एक एनोटेशन दिखाने के लिए मैं और एक टेस्ट केस बनाता हूँ, और इसका नाम रखता हूँ पब्लिक वॉइड
डज नॉट मैटर। इस टेस्ट केस का नाम है डज नॉट मैटर। ठीक है, अभी इसको कंट्रोल शिफ्ट ओ कर दिया और मैं यहाँ पे किया आई वॉन्ट टू गेट एग्जीक्यूटेड मल्टीपल टाइम्स नो मैटर वॉट। मैं इस टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, तो मैं इनेबल्ड इक्वल टू ट्रू लिख दूँ, नहीं भी लिखूँ तो भी चलेगा, अगर इनेबल्ड इक्वल टू ट्रू ना भी लिखो तो भी चलेगा। ठीक है, मैं इसको बहुत बार एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ और मैं किसी पे डिपेंडेंट भी नहीं होना चाहता। ठीक है, क्योंकि मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको बार बार मैं 5 बार इसको रन करना चाहता हूँ, तो मैं लिख दूंगा इन्वोकेशन काउंट इक्वल टू 5। ये सारे एक बार रन करेंगे, 1 1 1 रन होगा 3 टाइम्स, लेकिन ये भाई साहब 5 बार रन करेंगे, तो टोटल हमारा रन होगा 8। देखो ये 5 बार रन हुआ। ठीक है, सीक्वेंसिंग अभी गड़बड़ चल रही है मेरे सिस्टम में, पता नहीं क्यों। निकी और पूनम अगर आप ट्राई करोगे तो आप देखोगे कि ये सीक्वेंसिंग का इशू मेरे से लैपटॉप पे है, आपके में हो जाएगा, पता नहीं मेरे में क्यों है, मैं देखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे मेरा 5 बार रन हुआ है, पता नहीं ये आगे पीछे करके क्यों हो रहा है, हालांकि ऐसे होना नहीं चाहिए, बट समथिंग इज नॉट राइट इन माय सिस्टम। आप देखोगे तो ये 5 बार एग्जीक्यूट हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे इन्वोकेशन काउंट इक्वल टू 5 रखा है। तो कोई भी टेस्ट केस आप बहुत ज़्यादा बार रन करना चाहते हो तो आपको ये देना ही पड़ेगा, इन्वोकेशन काउंट इक्वल टू 5। इस ऐसे ही बहुत सारे टेस्ट एन जी के फीचर्स हैं जो आप testng.org वेबसाइट में जाएं और चेक करें, और एक एक को एक क्लास बनाएं, उसमें बहुत सारे एनोटेशंस दें और उसमें ये सारे चेक करें। और ये कहाँ पढ़ें? डॉक्यूमेंटेशन में। डॉक्यूमेंटेशन में देखिए, आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एनोटेशंस के बारे में बहुत सारी, आफ्टर स्वीट हमने ये सब किया हुआ है। ठीक है, बिफोर ग्रुप्स और आफ्टर ग्रुप्स है, वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे बताया ऑलवेज रन इक्वल टू ट्रू क्या है, डिपेंड्स ऑन मेथड्स के बारे में बताया, इनेबल्ड बताया, ग्रुप्स के बारे में बताऊंगा, इनहेरिट ग्रुप्स, ओनली फॉर ग्रुप्स। ये कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें सारा यूज़ नहीं करना, जितना यूज़ करेंगे मैं उतना ही बताऊंगा। ठीक है, डेटा प्रोवाइडर के बारे में बताऊंगा। और ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज रन इफ इट इज सेट टू ट्रू दिस टेस्ट मेथड विल ऑलवेज बी रन इवन इफ इट इज डिपेंडेंट ऑन ए मेथड दैट फेल्ड। एग्जैक्टली मैंने ये चीज आपको करके दिखाया। सो ऑलवेज रन इक्वल टू ट्रू इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हाउ टू मेक दिस टेस्ट केस एग्जीक्यूट इवन इफ इट इज डिपेंडेंट ऑन ए फेल्ड टेस्ट केस, तो ऑलवेज रन इक्वल टू ट्रू। ठीक है, नाउ द नंबर ऑफ टाइम्स दिस मेथड शुड बी इन्वोक्ड, तो जितनी बार आप इसको करना चाहें वो कर सकते हैं यूजिंग इन्वोकेशन काउंट। देर इज समथिंग नोन एज इन्वोकेशन टाइम आउट। ठीक है, मान लो आप एक पर्टिकुलर टेस्ट केस को 5 सेकंड के अंदर रन करना चाहते हो, तो आप उसको 5,000 बार दोगे। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, मैं इन तीनों को हटा देता हूँ, मैं इनको वो कर देता हूँ, मतलब इनको कमेंट मार दिया। ठीक है, अभी मेरे पास सिर्फ एक ही टेस्ट केस है, मैं ये टेस्ट केस को 5 बार रन कर देता हूँ। ठीक है, टोटल रन 5 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 5 बार आउटपुट भी इसका निकल गया। अभी मैं चाहता हूं कि ये बहुत जल्दी रन हो जाए, मैं चाहता हूं इसका इन्वोकेशन टाइम आउट 5,000 मिलीसेकंड में हो। ठीक है, मैं अभी इसको रन करता हूं। देखो ये पास हो गया। ठीक है, सो टेक्निकली यहाँ पे जो लिखा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ मिली सेकेंड्स दिस टेस्ट शुड टेक फॉर द टोटल 5 को रन करने के लिए, इसका एक क्राइटेरिया ये है कि अगर आपने इन्वोकेशन काउंट स्पेसिफाई नहीं किया है ना, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है।
अगर आपको इन्वोकेशन टाइम आउट यूज करना है ना तो ये मैंडेटरी है, ये इसका प्री रिक्विजिट है। अगर ये आप नहीं एंटर करते हो तो ये एरर नहीं थ्रो करेगा, लेकिन इसका कोई वजूद ही नहीं रहेगा। भाई तू 5,000 करना क्यों चाहता है? क्योंकि तेरे को कुछ चाहिए, तू मल्टीपल टाइम्स रन कर रहा है इसीलिए। लेकिन अगर आप इन्वोकेशन काउंट हटा दोगे ना, इसका कोई वजूद ही नहीं है, तो आप इन्वोकेशन काउंट मत हटाइए। अगर आपको इन्वोकेशन काउंट टाइम आउट देना है, चलो हम इसको टाइम आउट को कम कर देते हैं, मान लो 50 मिली सेकेंड। देखते हैं 50 मिली सेकेंड में होता है क्या। अगर फेल होता है तो फेल होता है, नहीं तो पास होगा तो होगा। नहीं, फिर भी पास हो गया, तो काफ़ी फास्ट है। ठीक है, तो हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही। बट एनीवेज हम इसको नॉलेज पर्सपेक्टिव से यूज़ कर रहे हैं, तो जनरली हम यहाँ पे मिली सेकेंड्स ऐसे लिखते हैं। 5000 मिली सेकेंड्स मतलब 5 सेकेंड। ठीक है, तो आप इस पे और खटर पटर मचा सकते हो, इट इज़ टोटली अप टू यू। तो ये हो गया आपका इन्वोकेशन काउंट। प्रायोरिटी मैंने बता दिया। द परसेंटेज ऑफ सक्सेस एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस मेथड, जनरली हम इसको यूज़ नहीं करते, तो आप सक्सेस परसेंटेज इक्वल टू करके 100 जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हो। ठीक है, टाइम आउट का मतलब है द मैक्सिमम नंबर ऑफ मिली टेस्ट शुड टेक। मान लो यहाँ पर एक ऑटोमेशन का कोड है और वो ऑटोमेशन का कोड आप इतना टाइम नहीं देना चाहते, तो आप दोगे टाइम आउट। मतलब टाइम आउट मैं इसको 5 मिली सेकेंड ही दूंगा फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये टेस्ट केस में चाहता हूँ 5 मिली सेकेंड में रन हो जाए। यहाँ पर हो भी जाएगा, बहुत फास्ट है, पता भी नहीं चल रहा। देखो हो भी गया। लेकिन अगर आप यही चीज़ ऑटोमेशन में दोगे तो हो सकता है फेल हो जाए, क्योंकि वेब ड्राइवर को बुलाएगा ये वो, उसको इतना तो टाइम लग ही जाता है। तो 5 मिली सेकेंड में क्या होगा? तो टाइम आउट मतलब आप एक पर्टिकुलर टेस्ट केस को बता रहे हो कि भैया इतने सेकंड के अंदर एग्जीक्यूट हो जा, अगर इतने सेकंड के अंदर तू एग्जीक्यूट नहीं होगा तो तू गया, तेरा कोई सीन नहीं बनता। सो दिस इज व्हाट इट इज रिक्वायर्ड। और इसके लिए ये सारे प्री रिक्विजिट्स नहीं चाहिए, खाली इन्वोकेशन टाइम आउट के लिए प्री रिक्विजिट चाहिए, इन्वोकेशन काउंट होना चाहिए। सो these are the ones these are the important ones which we use in TestNG annotation. So this is for today. आपका अभी तक कोई डाउट है TestNG में? बिकॉज सी इफ आई मैं तो एक दिन में सारा पढ़ा भी दूं, लेकिन फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आप लोग वैसे भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे। So this is for TestNG for today. Next class we will complete little bit more about TestNG. मैं TestNG के ये वाले एरियाज कवर करूँगा। आई टेस्ट, कॉन्टेक्स्ट इंटरफेस, पैरामीटराइजेशन, पैरेलल एग्जीक्यूशन, मल्टीपल थ्रेडिंग। थोड़ा टाइम लगेगा, बड़ा टॉपिक है। और मिसलेनियस फीचर्स के बारे में बताऊंगा, असर्ट्स एंड सॉफ्ट असर्ट्स के बारे में। चलो आज मैं असर्ट्स और सॉफ्ट असर्ट बता देता हूँ, क्लास क्यों खोटी करें। सो वी लर्न अबाउट असर्शंस एंड सॉफ्ट असर्शंस। ठीक है, तो मैं अभी काम करता हूँ, इसको बंद करता हूँ। असर्ट्स के लिए मैं पहले फर्स्ट आई टेल यू क्लास, मैं बताऊंगा पहले असर्ट, हार्ड असर्ट इसको कहते हैं, फिनिश। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आई मेक ए टेस्ट केस पब्लिक वॉइड बिगिन। मैं करता हूँ दिस इज बिगिनिंग ऑफ टेस्ट केस। ठीक है, देन आई विल मेक मिडिल। दिस इज एंड। मैंने ऐसे ही कुछ हाइपोथेटिकली कुछ एक छोटा सा क्लास बनाया, उसमें 3 टेस्ट केस बना दिए। अभी मैं असर्ट करना चाहता हूँ। असर्ट का मतलब क्या? मैंने आपको बोला था वैलिडेशन करो, वैलिडेशन करने के टेक्निक्स बताए थे ऑटोमेशन में। आप कैसे गेट, यस सर। हाँ, ड्राइवर डॉट गेट टाइटल कर सकते हो, गेट करेंट यूआरएल कर सकते हो, गेट पेज से सोर्स कर सकते हो, इज इनेबल्ड, इज डिस्प्लेड, इज सिलेक्टेड।
ऐसे करके 6 मेथड्स बताए थे। आपको इफ़ एल्स में वैलिडेट करना आना चाहिए। आपको स्ट्रिंग मैंने इसीलिए पढ़ा है ताकि आप यहाँ पे वैलिडेट कर सको। वैसे ही टेस्टंजी में खुद इनका एक वैलिडेशन टेक्निक है, असर्ट और सॉफ्ट असर्ट। तो पहले होता है असर्ट क्लास, ये हार्ड असर्ट मतलब असर्ट। तो यहाँ पे क्या करना होता है, आप असर्ट कर सकते हो, असर्ट, फिर आप असर्ट डॉट, जैसे ही असर्ट डॉट करोगे आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल जाएंगी। बट टेक्निकली हम दो चार चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। असर्ट डॉट, असर्ट इक्वल्स, तो यहाँ पे देखिए बुलियन एक्सपेक्टेड, बुलियन एक्चुअल कुछ है, ठीक है। बुलियन देखिए असर्ट इक्वल्स पे कितने सारे मेथड्स हैं और इनके कितने मल्टीपल इनपुट पैरामीटर्स हैं। देखो असर्ट इक्वल्स में इतने सारे ऑप्शंस हैं, स्ट्रिंग मैसेज दे दिया, कुछ भी दे दिया, आपने कुछ भी बुलियन कंडीशन दे दिया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पहला वाला उठाता हूँ, ठीक है, बुलियन बुलियन, ठीक है। मैं कुछ थोड़ा डिफिकल्ट वाला उठाता हूँ, इजी वाले तो नहीं उठाऊंगा। चलो मैं खुद से अपना ही बनाता हूँ। चलो इसी को ही उठा लेते हैं, बुलियन एक्सपेक्टेड, बुलियन एक्चुअल। ये क्या हुआ, उप सॉरी, ये गलत इंपोर्ट हुआ है, एक सेकेंड। असर्ट डॉट असर्ट इक्वल्स, ये टेस्टंजी क्यों नहीं उठा रहा, ये क्यों उठा रहा है, एक सेकेंड। असर्ट डॉट एक सेकेंड, हमने यहाँ पे जब असर्ट यूज किया था तो इसने टेस्टंजी डॉट असर्ट उठाया था, वहां पे पता नहीं क्या लफड़े कर रहा है। चलो मैं उठा के इधर ही पेस्ट कर देता हूँ, अब तो कोई दिक्कत नहीं, अब यहीं से उठाएगा वो। पता नहीं, मुझे अपना सिस्टम देखना पड़ेगा, पता नहीं इतनी गड़बड़ी क्यों हो रही है। ठीक है, अभी अभी ठीक है, देखो अभी कोई कट नहीं हुआ। चलो अभी एक्चुअल, ठीक है। तो मान लो मैं यहाँ पे कुछ लिख दूं, 1 इज ग्रेटर देन 2 विच इज फॉल्स, ठीक है। तो मैं सिंपल यही चीज लिख रहा हूं, मैं और कुछ नहीं दे रहा, ठीक है। 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स 2, सो लेट मी चेक। अभी मैं इसको प्रिंट करूंगा तो इसका आउटपुट क्या आएगा, आप लोग कुछ सोच पा रहे हो कि इसका आउटपुट क्या आना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक चीज फेल हो गई, क्यों, क्योंकि ये फेल्ड है, ये कंडीशन फॉल्स है। तो जहां पर कंडीशन फॉल्स होती है वो पर्टिकुलर टेस्ट केस फेल हो जाता है। अगर मैं इसको यहाँ रिवर्स कर दूं, आपने एक स्ट्रिंग लिया, कुछ कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता, मैं मैनिपुलेट कर सकता हूँ, दिस अलाउज अस टू मैनिपुलेट अ लॉट। ये फेल हो गया, ठीक है। अभी हम इस पे और कुछ करते हैं, असर्ट डॉट असर्ट इक्वल्स, मैं बुलियन कंडीशन लेना चाहता हूँ, ठीक है। एक्चुअल 1 इज लेस देन 2, ये सही है। अब ये 2, सॉरी ये बीच में, एक्सपेक्टेड 2 is less than 3, so both of them are true. Now let us check, फिर भी ये फेल होगा, क्यों, क्योंकि यहां पर एक फेल स्टेटमेंट है। ये जो दो पास हो रहे हैं ना, ये एंड और मिडिल पास हो रहे हैं, ये वाला यहाँ पर एक टेस्ट केस एक फेलियर है। तो ये क्योंकि ये फेलियर वाला स्टेटमेंट है तो हमारा ये फेल होता जाएगा। अगर मैं इसको हटा दूं और अभी दोबारा रन करूं तो तीनों पास हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये कंडीशन एकदम ट्रू है, ट्रू और ट्रू इज ट्रू, देखो तीनों पास हो गए। तो जहां तक एक कंडीशन फेल होता रहेगा, अगर आपका बाकी कंडीशन भी ट्रू है ना, तो ओवरऑल टेस्ट केस फेल दिखाएगा।
तो ये एक डिमेरिट है हार्ड असर्ट का, हार्ड असर्ट का एक डिमेरिट है, इसीलिए हम लोग जनरली अवॉइड करते हैं हार्ड असर्ट यूज करना, क्योंकि मैं यहाँ पर 10 स्टेटमेंट लिखूंगा, यहाँ पर एक स्टेटमेंट, यहाँ पर एक स्टेटमेंट और असर्शन बनाता जाऊंगा, और मेरे नीचे के 5 सही हैं लेकिन ऊपर के 5 फॉल्स हैं, तो बाय डिफॉल्ट वो फॉल्स ही प्रिंट करेगा, टेस्ट केस फेलियर ही दिखाएगा। तो ये एक डिमेरिट है असर्ट का, हार्ड असर्ट का। तो इसको ओवरकम करने के लिए हम लोग सॉफ्ट असर्ट यूज करते हैं, लेकिन सॉफ्ट सर वो फेलिंग दिखाता है या वो जंप ही नहीं करता, वहां पे नेक्स्ट लाइन पे जाता ही नहीं है, नेक्स्ट वाले असर्ट नहीं करता? नेक्स्ट वाले पे जाता भी नहीं है, इट जस्ट गोज आउट ऑफ द लूप, it does not go. ओके। So let's say for example I'm here, I'm writing a failed statement in line number 14. So this gentleman will always, the moment it encounters a failed statement, ये rest of the execution, rest of the statements execute करेगा नहीं, it will just jump out. That is why we don't use hard assert, because it will not give any consideration to other rows which are following it, because it will just not execute. The moment उसको fail मिला बाहर आ जाता है, it just comes out, it goes to the next test case. So this is the reason why we chose to use soft assert instead of hard assert. But soft assert के लिए आपको एक चीज करनी पड़ेगी, पहली चीज आपको soft assert class का object बनाना पड़ेगा. So you can make something like this. So first you have to create the object of soft assert class. So this is mandatory. You'll have to create, oops sorry मैं कहाँ टाइप कर रहा हूँ, my bad. So आपको एक soft assert class का object create करना ही पड़ेगा, and then you don't need this thing, you can use the soft assert. So you can use this thing, the soft assert का जो reference use कर सकते हो आप, soft assert dot assert true, and you can give a boolean condition and a string message. So what is the boolean condition? Let's say the boolean condition is true, and you can give a string message, I'm using soft assert. ठीक है, if I execute this, all the 3 test cases will pass. But this particular example does not signify the fact that soft assert is better than hard assert. So to signify this, we will do something like this. हम लोग लिखेंगे soft assert dot fail. मैं इसको भी फेल कर रहा हूं, ठीक है. Now as per my statement, as per my explanation, this should get executed because this is true and it is soft assert, and unlike hard assert, this row number 15 will not get skipped because row number 14 is actually making this particular statement erroneous or fail. बट यहाँ पर वो चीज वैलिडेट नहीं करेगी, यहाँ पर वो इस वाले पार्ट को इग्नोर कर सकता है, आई एम यूजिंग सॉफ्ट असर्ट, इग्नोर कर सकता है. मेरे देखो उसने इग्नोर, ये वाले बिगिन को उसने, एक सेकेंड मैं दोबारा इसको करता हूँ, देयर इज समथिंग नॉट राइट. रन एज टेस्टंजी टेस्ट, मैंने यहाँ पर इसको फेल किया, ठीक है, लेकिन उसने यहाँ पर उस चीज को इग्नोर कर दिया और इसको पास करवा दिया. बट यहाँ पर ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, आपको एक ये चीज लगानी पड़ेगी, soft assert dot assert all. This actually gives you the coagulation of all the failed attempts or the failed statements, but still then it will allow you to execute that, it will not skip. मेरे टेस्टंजी में कुछ इश्यूज हो रहे हैं बट आपके में नहीं होंगी. So whenever you using soft assert in any particular test case, make sure that for that test case you end soft assert with assert all. That means it is asserting all the assertions that you have used. मान लो आपने रो नंबर 14 से लेके रो नंबर
20 तक बहुत सारे असर्शंस लगाए, कुछ पास कुछ फेल, कुछ पास कुछ फेल हो रहे हैं, ठीक है। एग्जीक्यूशन टाइम में क्या होगा हमको क्या पता। तो एट द एंड आप बोल दोगे यहाँ पे, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ये मतलब है कि जितने भी आपने असर्शन किए हैं, ऑल जितने भी आप असर्शंस किए हैं, सारे को इकट्ठा करके उसको एग्जीक्यूट करो और इसको आगे बढ़ाओ। दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो यहाँ पर मैंने और एक सॉफ्ट असर्शन यूज किया, सॉफ्ट असर्ट डॉट असर्ट इक्वल्स, ठीक है। अब मैंने बूलियन एक्चुअल और बूलियन एक्सपेक्टेड दिया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बूलियन b1 इक्वल टू ट्रू, ओके, बूलियन b2 इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। I'll rather write it actual and I'll write it expected, ठीक है। So what will be the output here? This becomes actual is true, expected is false. So this obviously will turn out to be false, right? True and false is false, but still then ये हमको पास करके दे देगा. That is the beauty of soft assert. Failed. Begin को okay, last statement इसका failed है, तो ये fail कर रहा है. See, the following errors failed. I am failing this. Expected false but found true. So it is failing you, but it is executing till the last statement. Even though here our statement is by directly false. अगर हम हार्ड असर्ट करते ना, रो नंबर 18 पे आता ही नहीं, तो ये आउटपुट हमको मिलता ही नहीं। वो रो नंबर अगर हार्ड असर्ट में ना रो नंबर 14 में ही वो छोड़ के चला जाता, बट यहाँ पर हमको ये पास करके दे रहा है। पास मतलब ये फेल, मतलब पास फेल का मतलब ये यहाँ तक एग्जीक्यूट करने की क्षमता रख रहा है। अगर हार्ड असर्ट करते ना तो यहाँ पर ही छोड़ जाता हमको, क्योंकि यहाँ पर फेल है। तो ये 15 16 17 18 करता ही नहीं, यहाँ पर हमको यहाँ तक पहुँचने दे रहा है और आउटपुट में भी बता रहा है। तो मैं यहाँ तक पहुँच पा रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर मैंने इसको फेल कर दिया, ठीक है, मैं अभी और एक यूज करूंगा, सॉफ्ट असर्ट डॉट असर्ट फॉल्स। मैं बुलियन कंडीशन देना चाहता हूँ। बुलियन कंडीशन यहाँ पे मैं दूंगा 2 is less than 3, नहीं 2 is less than 1. I want to print. So ये एक्सक्यूज मी सर, ये रन करने से पहले एक बार रिजल्ट स्क्रॉल करेंगे क्या नीचे वाला? आई एम यूजिंग सॉफ्टवेयर से प्रिंट हो रहा है क्या रिजल्ट में? No, that is something which is a marquee statement. It generally does not get printed. That is not something which you get as a print statement. यहाँ पे कुछ print नहीं करवा रहे हम लोग. It is just a marquee statement which genuinely comes up at in the back end. यहाँ पर marquee statement को हम print नहीं कराते. ये print नहीं होगा. This is something for our understanding. Okay, अगर इस चीज को पास भी कराएंगे ना, let's say देखो यहाँ पर I am using soft assert. ये ट्रू स्टेटमेंट भी आपको कहीं भी, ये जो स्टेटमेंट है आई एम यूजिंग सॉफ्ट असर्ट, ये कहीं पर भी आपको दिखेगा नहीं। ये तो हम अपने लॉजिक के लिए यूज करते हैं, ओके आपको कहीं भी नहीं ओके दिखेगा। ठीक नहीं तो ये वाला भी दिखना चाहिए, लेकिन ये दिखेगा नहीं। दिस इज जस्ट समथिंग विच वी है। यूज। ओके, ओके, सो दिस इज द वे यू कैन, ओके, सो ये जूम का कुछ करना पड़ेगा बिकॉज पार्टिसिपेंट्स, ओके ठीक है। सो दिस इज व्हाट इट इज। आप अगर यहाँ पर और एक असर्शन यूज करना चाहो, सो डज नॉट मैटर ये ट्रू है फॉल्स है, कुछ भी करो, इट विल गो टिल रो नंबर 19। 2 लेस देन 1 इज नॉट ट्रू, 2 इज ग्रेटर देन 1, तो वहां पे बोलेगा एक्सपेक्टेड फॉल्स बट फाउंड ट्रू और समथिंग लाइक दैट। मेरा टेस्टिंग जी कुछ अलग ही बिहेव कर रहा है। आप लोग, मैं जो कोड लिख रहा हूँ
वो सारे कोड को ध्यान से अपने यहाँ कोड करना और आपको बराबर समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। एक्सपेक्टेड फॉल्स बट फाउंड ट्रू। सर उसमें सही दिखाया है, ये जो रिजल्ट है वो 18 का दिखाया है, जो भी आप कह रहे थे कि अलग से तो बिहेव मेरे कर को रहा 19th का नहीं दिखा रहा ना। है। अच्छा अच्छा। 19th आई एम यूजिंग assert false, right? So राइट assert राइट false, अच्छा। 2 is less than 1 is false. So technically this is true. बराबर है, राइट क्योंकि मैंने बराबर। यहाँ पे assert false यूज किया और यहाँ पे मैंने false स्टेटमेंट दी। अगर मैं यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट दे दूं तो ये आना चाहिए, क्योंकि अभी ये false नहीं रहा, ये भी true हो गया। आई एम फेलिंग दिस, देखो ये प्रिंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको डायरेक्टली फेल किया था तो यहाँ पे प्रिंट हुआ। अब देखिए, आई वॉन्ट टू प्रिंट एक्सपेक्टेड फॉल्स, आई वॉन्ट टू प्रिंट, यहाँ पे प्रिंट हुआ एक्सपेक्टेड फॉल्स बट फाउंड ट्रू। जो आप पूछ रहे थे ना कहाँ प्रिंट, ये मार्की वैल्यू अंदर हमारे प्रिंट हो रहे हैं। देखो आई एम यूजिंग सॉफ्ट असर्ट, सो ये आई एम यूजिंग सॉफ्ट असर्ट नहीं प्रिंट हुआ क्योंकि ट्रू है। यहाँ पे मेरे को दिख नहीं रहा आई एम यूजिंग सॉफ्ट असर्ट। देखो समथिंग इज नॉट राइट इन माई सिस्टम। तो यहाँ पर देखो व्हाट इज द कंडीशन हियर, मैंने असर्ट फॉल्स दिया, राइट? ये 1 लेस देन ट्रू, राइट। ये क्या है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो इसने एक्सपेक्टेड फॉल्स बट फाउंड ट्रू, तो काम सही ठीक है कर ठीक है। काम सही कर रहा है। तो आप यहाँ पे कुछ और दे दो, सॉफ्ट असर्ट डॉट असर्ट, एक्चुअली हाँ। यहाँ पे फॉल्स दे दो, जैसे कि 2 इज लेस देन 1। आई एम ट्राइंग टू वेरीफाई दिस। ठीक है, अभी मैं इसको रन करूंगा ना, तो यहाँ पे ये ट्रू है लेकिन ये फॉल्स है। असर्ट कर रहे हैं ट्रू बट अंडर कंडीशन दे रहे हैं फॉल्स। तो यहाँ पे लिखेगा आई एम ट्राइंग टू वेरीफाई दिस एक्सपेक्टेड ट्रू बट फाउंड फॉल्स। तो ये तीनों चीजें आपकी आउटपुट में आ रही हैं। बोल रहा है कि द फॉलोइंग असर्ट्स फेल्ड। मैं इसको कॉपी कर रहा हूं और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूं, तो ये चारों ऐसे फेल दिखा रहा है। सॉरी सर यहाँ पे बट ये फेल 1 ही क्यों दिखा रहा है? वो जो आपने डेलिबरेटली फेल किया है वो नहीं, वो असर डॉट फेल से की वजह से वो सिर्फ एक ही फेल, तो बाकी क्यों नहीं दिखा रहा है? बिकॉज जो आपने लास्ट वाले दो असर्ट फॉल्स और असर्ट असर्ट ट्रू है, ये तो भी मतलब एज एक्सपेक्टेड इज नॉट वर्किंग, तो फेल 1 क्यों रिजल्ट शो कर रहा है? कंफ्यूजिंग हो गया यहाँ पे। देख, ये जो आई एम फेलिंग दिस, ये आउटपुट चेक करो, ये रो नंबर 14 के लिए बराबर दिख रहा है। ये रो नंबर 14 का आउटपुट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है? फेल्ड का, फेल का, मैं राइट राइट। पास का, देखो पास तो हो चुका है इन दोनों का सीन ही छोड़ दो। ये जो फेल्ड का, ये जो है ना, ये फेल्ड का लॉग है, ये पूरा फेलियर लॉग है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? तो आप एक एक चीज ध्यान से देखो। अब मैं फेलियर लॉग की बात कर रहा हूँ, ये वाला हमने जानबूझ के फेल किया है, राइट। ये वाला फेल किया। मेथड क्या है, बिगिन, तो ये बिगिन के लिए फेलियर बिगिन लॉग है। स्टार्ट हो गया। ये पहला लाइन फेल हुआ, आई एम फेलिंग दिस, फेल कर दिया इसने, ओके। ठीक है? अब आया, अब नेक्स्ट फेलियर हमारा कहाँ पे है, ये रहा हमारा नेक्स्ट फेलियर। ये असर्ट फॉल्स है। ये हमारा नेक्स्ट फेलियर है, क्यों? क्योंकि ट्रू और फॉल्स को हमने ऊपर नीचे कर दिया, ठीक है? तो इसने क्या लिखा, एक्सपेक्टेड फॉल्स बट फाउंड ट्रू, फॉल्स बट फाउंड ट्रू, राइट। बराबर। फिर आया इस पे, इसको भी हमने बराबर। झूठा कर दिया, राइट? तो इसने लिखा आई वांट टू प्रिंट एक्सपेक्टेड फॉल्स बट फाउंड ट्रू। अब ये रो नंबर 20 को भी हमने झूठा कर दिया, तो इसने आई एम ट्राइंग टू वेरीफाई दिस एक्सपेक्टेड ट्रू बट फाउंड फॉल्स। तो जो भी कर रहा है सही कर रहा है। और चारों जो हमने फॉल्स स्टेटमेंट दिए ना, वो चारों यहाँ पर प्रिंट भी हो रखे हैं। देखो ये चारों प्रिंट हो रखे हैं। मैंने इनको यहाँ चेप दिया, थोड़ा वो ऐसे होना चाहिए था, तब आपको समझ में आता। तो बस इसकी जरूरत है, ठीक है? समझ में आ गया? ठीक है सर। अब हर एक लाइन को एक बार देखो, ये फेल्ड है हमारा, मैं इधर लिख देता हूँ, ये अपना फेल्ड है, और हमारा ये भी फेल्ड है, हमारा ये भी फेल्ड है,
और हमारा ये रो नंबर 20 भी फेल्ड है। तो ये चारों स्टेटमेंट हमारे फेल्ड हैं। और देखो चारों स्टेटमेंट जो फेल्ड है ना, उनका फेलियर का रीजन उसने साफ साफ बता के रखा है। तो कोई गड़बड़ी नहीं है, एकदम परफेक्ट है। दिख रहा है? पूनम अभी समझ में आया? हेलो? Poonam, we can't hear you. Okay, so whatever it is, so this is what exactly our assertion is. Can you hear me, Poonam? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I can hear you. Okay, now आप एक काम करो, मैंने यहाँ पे 4 ही दिए, आप एक काम करो 10 और दे दो और आउटपुट चेक करो, और ऊपर ही आउटपुट आ जाता है, ठीक है? एक एक आउटपुट को कंपेयर करते रहो ऊपर के साथ, कि अगर आप जानबूझ के और अगर सही कर दोगे, जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक सही कर देता हूँ, ठीक है? सॉफ्ट assert डॉट assert ट्रू, अरे यार ट्रू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रू, तो ये सही है ना, इसमें कोई दोहराई नहीं। ये सही है, फिर ये सही है, इसको कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पर ये यहाँ पे प्रिंट करेगा ही नहीं, यहाँ पे वही 4 रहेंगे, ऊपर वाले 4 ही रहेंगे। इस ट्रू को वो तवज्जो देगा ही नहीं, क्योंकि वो तो ट्रू है। देखो ये वही 4 ही पे तवज्जो दे रहा है। जो ट्रू है उसके ऊपर इतना वो मगजमारी नहीं करता, जो फेल्ड हो रहे हैं उन पे काम करता है। और अगर ठीक है। अगर अब यहाँ पे आपने और एक सॉफ्ट असर्ट लगा दिया, सॉफ्ट असर्ट डॉट असर्ट फेल, नहीं यहाँ पे असर्ट ट्रू करके अंदर फॉल्स कर दो, तो ये फेल हो गया ना। हाँ तो अभी इसके हाँ जी। आउटपुट में पांचवा चीज आ जाना चाहिए, क्योंकि ऊपर के 4 हैं और ये पांचवा ये भी फेल्ड है। हम्म। देखो आ गया ना, हाँ यस सर। समझ में आ गया? तो बराबर काम कर रहा है, ठीक है? तो ये हो गया यस सर। हमारा सॉफ्ट असर्ट और हार्ड असर्ट के बीच डिफरेंस। लेकिन इस चीज को देना मत भूलना, ये हमेशा लिखना, और हर टेस्ट केस में लिखना। ये नहीं कि एक टेस्ट केस में लिख दिया या फिर बिफोर मेथड लगा के आफ्टर मेथड में लिख लिया, नहीं। मैं रेकमेंड करता हूँ ये पर्टिकुलर चीज को, जहां भी आप सॉफ्ट असर्ट यूज करते हो, आप इसको हर सॉफ्ट असर्शन के नीचे लिखो, ये जरूरी है, ठीक है? चलो आज के लिए इतना यस ही। सर। हम ट्यूसडे को अगेन डिपेंड करता है कि मैं फ्री हो पा रहा हूँ कि नहीं, ठीक है? सर एक चीज